कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। योग के महत्व को समझने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से योगा हमारी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, निरोग रहने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप योग करें, थोड़ा समय अपने लिए निकालें। तो भारत और भारतीय संस्कृति में योग का प्रभाव और महत्व किसी से छिपा नहीं है। सदियों से अपने देश में आम और खास सभी लोग योग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा के रूप में विकसित और पल्लवित होने के बाद योग आज जिंदगी जीने की एक नई कला के रूप में देखा और समझा जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय योग को योगा डे के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था। योग दिवस के तौर पर 21 जून का दिन चुनने के पीछे वजह थी कि धरती के उत्तरी गोला युद्ध में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। साथ ही ये दिन दुनिया के तमाम हिस्सों में खास महत्व रखता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद जून 2015 से पूरा विश्व हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करता है। तो कई कोटेशन भी इस योग दिवस के मौके पर सामने देखने को मिलता है कि Mysuru, Honorable Yudhvir Krishnadatta Samaraja Wadiyar Maharaja Mysuru, Pratap Sinhaji, Honorable MP, B. Srinivas Prasad ji, Honorable MP, local MLAs, revered Gurus, senior officers of Ministry of Ayush, Central Ministry, State Government, eminent dignitaries, expert of yoga, allied science and media person, and my dear friends. It is my privilege to welcome you all on the International Day of Yoga 2022 amidst the breathtaking beauty of Mysuru. After 2 tumultuous years of the pandemic, we are now celebrating IDY in physical mode. The state of Karnataka is gifted by God with rich biodiversity and has a rich history of arts, culture and literature. It has won Gyanpidya, country's highest literary award for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage of yoga began on 13 March 2022 with the 100 days countdown campaign involving 100 organizations across 100 cities till today. With the collaboration of state and the union governments, ministries, events at various iconic sites across India have been observed. Now, this grand succession of celebration is culminating in Mysuru, the beautiful heritage city of Karnataka. We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's exemplary and continued efforts. The International Day of Yoga and the science of yoga has received recognition around the globe. The effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual, communities, nations, and the world as a whole. It is his personal engagement and consistent efforts that the world is experiencing an increasing spirit of yoga and its benefit. Under his able leadership,
The nation is changing the world dynamics, and yoga has played a key role in that. Yoga has brought the world together, reshaping the global values, and is bringing different healthcare system closer. He has written to the head of the state of different countries and also head of villages in India to join together in spreading the message of yoga. This aligns with the year's theme, Yoga for Humanity, and the Ministry of Ayush has designed unique program to include various sections of the society to celebrate health and heterogeneity. We are involving the whole world through Guardian Ring program and whole government through celebration at 75 iconic places. There will be disseminations of youth practices and research through exhibition in Dasara ground today and tomorrow. And all योग से मन और शरीर के बीच एकता और मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का साधना। योग अगर निरंतर हम करेंगे, प्रतिदिन करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी हल्का होगा, कार्य शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ जीवन शक्ति और एंटीबॉडी भी आपकी बनेगी। तो मैं सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मत से पास किया। परिणाम स्वरूप आज 193 देश में योग कर निरोग बनने का सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साथ ही साथ योग को देश में पॉपुलर करने में हमारे स्वामी रामदेव बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम, और मैं सभी झारखंड वासी देशवासी से अपील करता हूं कि अपने शरीर के अपने 24 घंटे में आधे 1 घंटे हम शरीर को जरूर दें, क्योंकि योग से हमारा शरीर हीट रहेगा, और हीट रहेगा तभी हम फिट होकर अपने और समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। सर, पहली बार जिला प्रशासन की ओर से योग दिवस का आयोजन नहीं किया गया है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मना रहा, और इस तरह के अगर किसी जिला प्रशासन के लिए द्वारा आज जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और उस उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जिला प्रशासन के द्वारा योग दिवस नहीं मनाना कहीं से भी उचित नहीं है। ये हिंदू ಹಾಗೂ ಗಂತವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಯುವರಾಜರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು योग फॉर ह्यूमैनिटी और इसी मकसद के साथ इस बार की ये थीम रखी गई है, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे विश्व में योग किया जा रहा है
और ना सिर्फ बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी इसमें शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जुड़े, अपनी जिंदगी में योग को शामिल करें ताकि वो निरोग रहे, मन शांत रहे और एक नई ऊर्जा भरने का काम करता है योग। तो जरूर से योग करें, ना सिर्फ एक दिन बल्कि योग को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल करें। योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सभी के लिए बेहद फायदेमंद है और जानना बेहद जरूरी है। योग शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। योग आध्यात्मिक अभ्यास को जो शांति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। योग के माध्यम से तन, मन, मस्तिष्क की गतिविधियों को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और सीधा अब रुक करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस खास मौके पर लोगों का जुटान होता है। धनबाद में योग को लेकर लोगों में कैसा उत्साह है, कैसी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? दिलीप, सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारी आवाज दिलीप तक नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ना सिर्फ जमशेदपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, धनबाद श्री युद्धवीर कृष्णदत्त, चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर
योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन परंपरा आज जब यहाँ पर अंगड़ाई ले रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योग गुरु की भूमिका में इस योग पर्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नया सवेरा हमारे लिए नई राह लेकर आया है। आइए योग के माध्यम से नई आशा की किरण जागृत करें। हम योग के लिए तैयार हो जाएं।
The yoga is going to be demonstrated here and you can also see it on your screens. You are requested to please follow the instructions. आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ईश्वर बसवा रेड्डी जी को, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, आयुष मंत्रालय। नमस्कार, सुप्रभातम। नाड़ देवता माँ चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत, सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ नमस्कार मुद्रे धारण ಮಾಡಿ। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। तो इंटरनेशनल योग डे के मौके पर पूरा विश्व योग मना रहा है और ये सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड हाईकोर्ट परिसर की दिखा रहे हैं, जहां पर योग करने के लिए दीप प्रज्वलित की जा रही है और इसके साथ ही योग की शुरुआत होगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट परिसर की, जहां योग करने के लिए जुटे हैं लोग। योग करेगा निरोग, योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग इस बार की ये थीम है और इसी के साथ ही लोगों से अपील भी है कि वो जरूर से योग करें, योग को अपनी जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि योग ही आपको ऊर्जा से भरता है, योग ही आपको बीमारियों से दूर करता है और योग आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा को भरने का काम करता है। तो पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये झारखंड हाईकोर्ट परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एकजुट हुए हैं लोग और यहां पर योग करने के लिए सभी एक साथ मौजूद हैं। योग को अपने जीवन में शामिल करें, निरोग रहे। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप हर जंग को जीत सकते हैं। योग शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। योग आध्यात्मिक अभ्यास है जो शांति, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। योग के माध्यम से तन, मन, मस्तिष्क की गतिविधियों को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। योग एक ऐसा अभ्यास है जो आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है।
ऐसे में नियमित योगाभ्यास की सलाह दी जाती है। योग के महत्व को समझते हुए दुनिया को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। ये अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 8वें विश्व योग दिवस के मौके पर हर तरफ लोग योग की तरफ इनका रुझान बढ़ा है। आपको बताएं कि कर्नाटक के मैसूर प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है और योग कर रहे हैं। झारखंड की भी अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की जहां पर योग करने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक योग का पहला प्रसार भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों के बीच किया था। इन 7 ऋषियों को ग्रीष्म संक्रांति के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा पर योग की दीक्षा दी गई और इस सभी को शिव के अवतरण के तौर पर माना जाता था। दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून की तारीख योग दिवस के लिए तय कर दी। 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के भारत के प्रस्ताव को श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ तलियन्ना समस्थिति के तन गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। कुತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ अभ्यास। श्वास लीजिए, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए। ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराइए। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ अप्रदक्षिणाकारವಾಗಿ 2 बार ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए। ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। पुनः एक बार श्वास लीजिए। भुजाओं को ऊपर उठाइए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। उसिर बिಡುತ್ತಾ कई बेरಳುಗಳನ್ನು भुजद में इरिसी। दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। 2 ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद 2 बार कीजिए। विरुद्ध दिक्किನಲ್ಲಿ अभ्यासವನ್ನು 2 बारी ಮಾಡಬೇಕು। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ
ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया. पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए, पादಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರವಿರಲಿ. हाथों को कंधे की सीध ಮೇಲೆ सामने की ओर उठाइए. अंगೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. श्वास लीजिए. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, दाईं तरफ. श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए. श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए. श्वास इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और 1 बार. श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए. पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को. श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ. घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे. ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಚಲನ ಕ್ರಿಯೆ अभ्यास. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ. श्वास भरते हुए वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. श्वास भरते हुए वापस आइए. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए. विश्राम कीजिए. विश्राम. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे. ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರ ಇರಲಿ. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಥೇಲಿयों को उल्टा कीजिए. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. एड़ियों को उठाइए. पंजों पर संतुलन बनाए. हिम्मडिಗಳ ಮೇಲೆ. और आज देश से नहीं पूरे विश्व ने योग दिवस के रूप में मनाया है. और उसी योग दिवस के रूप में आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी लोग यहाँ योग दिवस मना रहे हैं. और इस योग दिवस के माध्यम से हम देश की जनता को, विश्व की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं. एकजुट होकर के शरीर को स्वस्थ रखें, देश को स्वावलंबी बनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं. वृक्षासन. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए. ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए. नमस्कार मुद्रा बनाइए. पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे. वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे. श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को जंघा पर रखिए. ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए. नमस्कार मुद्रा बनाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. माँ चामुंडी नम नमन. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास पाद हस्तासन. अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿ.
शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, शरीरवನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, श्वास छोड़ते हुए यथा प्रकार आगे झुकिए। प्लीज बेंड फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अपने हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ತಲೆಯನ್ನ ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ। लेट द हेड टच योर नी इफ पॉसिबल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ आसनದ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। ಆಸನವನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। सुंदरवादंತಹ अभ्यास क्रम। ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाइए। बल पादವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। बलगೈ बलपादದಿಂದ ಇಡಿಸಿ अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। पादವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए। निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ हाथों को नितंब के पास रखिए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए। ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं। ಇದು दंडासन। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए। ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ।
यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है ಈ ಆಸನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ लाभदायकवादंतದ್ದು वापस दंडासन में वापस आइए थोड़ी देर विश्राम कीजिए पुनः दंडासन स्थिति के बंदो विश्रांति मारिए अब हम 3 आसनों का गढ़ी बनाएंगे पहला अभ्यास वज्रासन पैरों को मोड़ते हुए एड़ों के बीच बैठ जाइए ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो पादದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ हाथों को घुटनों पर रखिए ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ कमर और गर्दन को सीधा कीजिए ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए वज्रासन इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ हाथों को कमर पर रखिए ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास कीजिए अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए अगला अभ्यास शशकासन दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाए ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।